all-time high breakout again, right? Which is good sign. Now the market sentiment, I think there is some kind of news spreading. If I'm not wrong, for the US one. What was that news? There is some news, I guess, in the some kind of strike or war, something. So there is some negative sentiments. US UK Army, yeah, US UK Army and Palestine war, that one. That's correct. Yeah. So there is some news. Let's see what happens to the market on Monday. Right. If it is get settled down in this 2 days, then maybe will no impact on Indian market. But if it is still like spreading, then we can see some negative candle or the red candle on Monday. Now the if you see in the lower time frame, this is what we discussed last time, that Nifty is making highs, but the indicators are making lows, right? So there is a possibility that if this breakout to be successful, we need a retest candle at least, right? So this is also one particular thing we need to consider, because in shorter time frame, Nifty is making highs, but I mean the price is making the highs, but the indicator is making the low, right? Let's quickly look at Bank Nifty. Bank Nifty is still down. So this is, I think, the daily trend line or weekly trend line. Yeah, this is weekly trend line. Nifty is like taking the support on this trend line multiple times. My voice is audible, right? Yes. Yes, it is. Okay, good. Yes. So if you see this weekly trend line that we draw, Nifty is like trying to take the support there on Bank Nifty is trying to take the support on the trend line only. Almost 1, 2, 2, 3 candles it has taken the support. Now in daily, this kind of small channel it is trying to form. So if you check in even 4 hours, it's trying to form this channel here, the parallel channel. So Bank Nifty is still below the all-time high, but Nifty has given the breakout. Daily MACD is still down in Bank Nifty. Let's check for Nifty as well. I just missed this. It is just turning up. So with new high, it is just turning up. So it's still in the not a solid zone, I can say, right? So to make the new rally, so it needs to sustain about this level now. So not a clear view, at least for trade, just like last week we had, right? So we discuss about on, I think we had last connect on 6th, right? Or before that? When was our last connect? 6th of January or before that? I think 6th of January, New Year. So let's see, we don't have any clear view as such to take the trade in the weekly time zone, or I mean in the daily time zone. Here also it has made new highs, but our indicators are still making lows. Yeah, only swing opportunities will get, like if we get again near about this trend line, then you can buy. If you found any negative candle like this, then you can sell, right? All right, so our today's topic is like the EMA theory, right? So let's start with Nifty. I will just delete all the indicators now. Okay, so we basically had a we basically followed
four major we basically follow four major EMAs, right? Which are them? 1 minute. Oh, sorry. Yeah. So we follow majorly four EMAs, right? Which are them? Anyone remember? कौन कौन से EMAs हम लोग फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए? फर्स्ट आपका है 20 EMA, 20, then 50, 50 EMA, 100, 100, then 100 and 100 to perfect. 200. So these are the four EMAs we majorly follows for our both the strategies like the gate strategy as well as the EMA strategy. Now, when you say so basically, and how this strategy was, this strategy was on the correction instead of momentum, right? So or the rise, right? So basically this strategy अपने को बताती है strategy की अपना करेक्शन कब खत्म हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ करेक्शन, और ये किसी भी टाइमलाइन में हमने टेस्ट किया था, किसी भी टाइमलाइन में ये वर्क होता है, राइट? सो फर्स्ट जो आपका करेक्शन जो खत्म होता है वो कौन से टाइम, कौन से इस पे होता है, ईएमए पे होता है आपका 20 EMA पे, राइट? 20 EMA पे आपका फर्स्ट करेक्शन कंप्लीट होता है, राइट? ये आपका सेकंड करेक्शन पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड करेक्शन पॉइंट हो गया, और ये आपका फाइनल करेक्शन पॉइंट होता है नॉर्मली। और अगर इसके नीचे जाता है तो हम अपने को टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, राइट? सो फाइनल करेक्शन इफ ब्रेक्स देन follow next timeline. Now next timeline means what? अगर आप Daily to 1 weekly, मिनट, weekly to यस, monthly. अगर आप 1 मिनट फॉलो करते हो तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपका रहेगा लेट्स से 5 मिनट्स, राइट? अगर 5 मिनट फॉलो कर रहे हो, 5 मिनट में 200 EMA ब्रेक हो गया, तो आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट फॉलो करना है, राइट? अगर 15 मिनट्स में भी 200 EMA ब्रेक होता है तो आपको सीधा जाना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में भी अगर 200 EMA ब्रेक हो गया तो आपको 1H, राइट? 1H to 2H, 2H to 4H, and 4H to 1 day, 1 day to 1 week, and then 1 week to 1 month. और 1 मंथ में भी अगर फेल ब्रेक हो गया तो 1 मंथ में अगर 200 EMA आपका ब्रेक हो जाता है तो उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, किसी के बाद हमने क्या नाम दिया था उस स्टॉक को? याद है किसी को? बोलो 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 बोलो, कौन कौन है कॉल पे? What we call this stock? What is? Sorry? Bearish. नो नो, बेरिश तो ये सारे मतलब बेरिश ही ट्रेंड चल रहे हैं आपके, करेक्शन चल रहा है मतलब।
उस स्टॉक, पर्टिकुलर डेड स्टॉक, स्टॉक डेड स्टॉक, राइट? और देखो तो ये We call it a dead stock. गेस किया मैंने। देखो Yes. पापा जी नहा So ली basically because वो 1 मंथ में भी अगर ये 200 EMA को ब्रेक करता है तो उसका आगे कुछ भरोसा नहीं, बहुत मतलब अगर उसको वापस ऊपर आना भी है तो उसको शायद महीनों सालों लग जाएंगे, डिकेड लग जाएगा शायद, राइट? So that is called a dead stock, right? So if some stock, any stock, let's say, if it is below monthly 200 EMA, don't enter into that, right? Because we never know, it may give small momentums or small upsides, but वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन मीडियम टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक नहीं है। ओके, सो विल नॉट बाय समथिंग व्हिच इज लेट्स से बिलो मंथली 200 EMA, राइट? सो फाइनल करेक्शन आपका किसी भी टाइम फ्रेम में नॉर्मली खत्म होगा 200 EMA पे, बट अगर वो 200 EMA ब्रेक होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो आपको टाइम फ्रेम तुरंत चेंज करना है, बिकॉज वो उस टाइम फ्रेम में उस टाइम फ्रेम के लिए बेरिश हो जाता है। ओके, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो लेट्स से मैं निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ। कौन सा इंडिकेटर लगा रहा हूँ मैं? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, EMA, राइट? क्या हुआ इसको? और इसका जो लेंथ है वो मैं कर रहा हूँ 200, बाय डिफॉल्ट 9 है तो मैं उसको कर रहा हूँ 20, सॉरी। क्या हो रहा है इसको? EMA, इसका जो लेंथ है वो मैं कर दूंगा 20। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ करेक्शन अपना क्या है? 200, राइट? सो जैसे यहाँ पे देखो जैसे निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, जब आया तो कहाँ पे आके रुका? 20 EMA पे। यहाँ पे भी देखो 20 EMA पे। सो ये सारे जो करेक्शन पॉइंट्स आपको नॉर्मली आपको दिख रहा है कि 20 EMA पे खत्म हो रहा है, राइट? अभी यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट 20 EMA पे खत्म हो गया था। यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा वो बताता हूँ। यहाँ पे भी 20 EMA पे खत्म हुआ, राइट? आप पीछे भी जाके देखोगे, जैसे कोई डाउनफॉल भी चल रहा है तो जब ऊपर गया तो इसका जो अपसाइड का ये है वो बेसिकली 20 EMA से नीचे आया, 20 EMA से नीचे आया। यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया था बट वो बताता हूँ कहाँ से आया, राइट? सो यहाँ पे भी 20 EMA पे आया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आया, राइट? यहाँ पे भी ऊपर जाते वक्त 20 EMA से ऊपर गया, 20 EMA से ऊपर गया, 20 EMA से ऊपर गया, राइट? सो आपको अगर ट्रेड लेना है 1 मिनट के चार्ट में, जो स्कैल्पर से बेसिकली, राइट, जो ट्रेड लेते हैं वो क्या करेंगे, जैसे अगर कोई यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव कैंडल मिला इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद ये भी पॉजिटिव कैंडल नहीं, ये जो पॉजिटिव कैंडल है इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, राइट? यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? सो जो भी कैंडल अच्छा फॉर्म करेगा उसके नीचे आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो, राइट? नीचे आते वक्त भी देखो 20 EMA से नीचे आया, 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 राइट? सो आपको नॉर्मली क्या दिख रहा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ करेक्शन आपका जो भी मिलेगा आपको वो 20 EMA से दिखेगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट EMA we followed to find if the correction is ending or not, right? सो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट? सो अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखो ये ट्रेड फेल हो जाता आपका, राइट? बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा कैंडल मिला था, उसका हाई भी गया था बट उसके बाद नीचे आ गया, राइट? सो जैसे ये लो जाएगा आपका और 21,876 तो आप पोजीशन को कट कर दोगे, राइट? सो अगर ये 20 EMA को कट करता है तो ये नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, राइट? सो उसके लिए हमारे पास क्या है? सेकेंड पॉइंट ऑफ करेक्शन। सेकेंड पॉइंट ऑफ करेक्शन आपका है 50 EMA। सो वापस मैंने और एक EMA इंडिकेटर ऐड किया जहाँ पे मैं लेंथ दे रहा हूँ 50, मेथड बोल रहा हूँ EMA, राइट? सो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ था तो देखो ये कहाँ से खत्म हुआ? 50 EMA से। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो
जब भी 20 EMA को ब्रेक करेगा, अगर आप उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करो तो नॉर्मली क्या होगा, आपका 50 EMA पे करेक्शन खत्म होगा। जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी खत्म हुआ था, राइट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नीचे जब आया तो 50 EMA से वो नीचे गया है, ऊपर गया है। नीचे आते वक्त भी ऐसे ही होगा आपका। यहाँ पे भी देखो, जो ये कट किया था 20 EMA को, राइट, यहाँ पे तो अच्छा सा गया था, बट यहाँ पे जो कट किया था वो आपका 50 EMA से वापस रिवर्स मारा था, राइट। यहाँ पे भी देखो, ये जो ऊपर कट किया था तो ऊपर जाते वक्त उसने कहाँ से करेक्शन खत्म करके 50 EMA से वो नीचे आ गया था। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऊपर गया था बट तुरंत 50 EMA से नीचे आ गया, राइट। ऊपर जाते वक्त भी इतना पूरा नीचे आया, राइट। यहाँ पे 20 EMA पे उसने करेक्शन नहीं खत्म किया। यहाँ पे भी शायद ट्रेड फेल हो जाता अगर कोई लेता तो ये कैंडल देख के, बट जो नेक्स्ट करेक्शन आपका खत्म हुआ वो 50 EMA पे खत्म हुआ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नीचे आया, फॉलोअप नहीं कोई भी। यहाँ पे भी एक सॉलिड कैंडल प्रिंट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे भी 50 EMA से ऊपर गया, राइट। सो नॉर्मली आपका जो EMA स्ट्रेटेजी है, वो जो करेक्शन पॉइंट्स है आपके, वो 20 और 50 पे खत्म हो रहे हैं, राइट। अगर लेट्स से, अगर कोई चार्ट है जो बेसिकली 50 EMA को भी ब्रेक करता है, यहाँ पे भी देखो 50-50, राइट, अच्छा खासा 1 मिनट के चार्ट पे भी अ, अच्छा खासा उसने ऊपर गया। सो अगर 1 मिनट का चार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, 21,591 से लेकर पूरा अगर देखोगे आप तो, अगर यहाँ तक भी पोजीशन लेते हो 626, राइट, 1 मिनट के चार्ट में आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिल रहे, विच इज वेरी गुड मोमेंटम एक्चुअली, राइट, और वेरी गुड गेन। अभी जैसे यहाँ पे ये 20 और 50 को भी ब्रेक करके ऊपर गया है, राइट, यहाँ पे भी गया है, राइट। सो यहाँ पे भी गया है देखो, 2-3 बार। तो ये करेक्शन आपका नेक्स्ट कहाँ पे खत्म होगा, अगर 50 EMA भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट करेक्शन कहाँ 100 पे end होगा आपका, यस 100 पे, राइट। सो आपको वापस एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड करना है। उसका लेंथ आपको देना है 100। हम लोग 1 मिनट के चार्ट में, ओके। सो जैसे यहाँ पे गया था मैंने बोला, तो यहाँ से बराबर वो 100 से नीचे आया, राइट। यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो वो देखते कहाँ से खत्म हुआ। यहाँ पे देखो 100 से नीचे आया है। यहाँ पे देखो, ये 3 मैंने बताया था, राइट। सो ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट आपके 100 से खत्म हो गए थे। यहाँ पे भी ऊपर गया था, यहाँ पे भी ट्रेड फेल हो जाता, बट वापस जब नीचे आया तो अच्छा खासा नीचे आया है, राइट। सो आपका थर्ड पॉइंट ऑफ करेक्शन आपका रहेगा 100। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे आया था ये वापस यहाँ से 100 से ऊपर चला गया, राइट। सो यहाँ पे भी देखो 100 से नीचे आया, 100 से नीचे आया, राइट। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 से आया है। यहाँ पे भी देखो 100 से ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे ब्रेक हुआ है और यहाँ पे 100 से नीचे आया, यहाँ पे भी 100 से नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। सो जो भी डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो, राइट, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। सो अपसाइड जब नीचे आएगा तो 20, 50, 100 वो सब एक्चुअली ऐसे ब्रेक होते होते कि करेक्शन आपका उस EMA पे खत्म होगा, राइट। यहाँ पे 50 से हुआ, यहाँ पे 100 से हुआ, यहाँ पे 100 पे हुआ, राइट, ओके। और जो फाइनल करेक्शन पॉइंट है आपका, वो है आपका 200 EMA। ओके। सो जो फाइनल करेक्शन पॉइंट है किसी भी टाइम फ्रेम में, वो आपका फाइनल है 200। सो देखते हैं कहाँ से अपने को 200 से मिल रहा है। 1 मिनट। ओके। सो यहाँ पे जो नीचे आया था 1 मिनट के चार्ट पे 200 EMA पे कट तो किया है, बट कोई फॉलोअप नहीं है। बट ये जो कैंडल है इसके बाद आप
पोजीशन ले सकते हो, नो डाउट, बिकॉज 200 EMA एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है आपका, राइट? सो I will write here. So 200 EMA is your strong reversal point. राइट, जहाँ पे आपका फाइनल करेक्शन खत्म होने के ज्यादा चांसेस है। तो जैसे ये इतना नीचे आया, यहाँ से देख लो, यहाँ से नीचे जब आया इतना सॉलिड, मतलब बियर्स थे, बट जब भी वो 200 EMA पे आया वापस यहाँ पे, तो वापस उसने इतना मस्त कमबैक भी किया है, राइट? वापस ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे पहुंच गया। सो ये कैंडल्स देख के मतलब कोई भी डर जाएगा बेसिकली, बट यहाँ पे जो 200 EMA था, उस वहां से वो पूरा रिवर्स भी होगा उसी स्पीड में ऑलमोस्ट। ओके, सो 1 मिनट का चार्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं जब EMA बहुत पास हो तो क्या करना है, राइट? बट यहाँ पे भी देखो इतना सारा नीचे आया था, 200 EMA से वापस ऊपर गया है, राइट? नीचे आते वक्त भी देखो, यहाँ पे 200 EMA ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, यहाँ पे देखो वापस ऑलमोस्ट 200 EMA पे नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पे भी देखो 200 EMA से इतना नीचे आया, राइट? सो 200 EMA आपका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है, जहाँ से चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि वहां से वो रिवर्स करेगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ये भी देखो ऑलमोस्ट 21,599, मतलब 600 से लेकर 1 मिनट के चार्ट में ऑलमोस्ट 500 तक आया है, राइट? 1 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हो, और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर 30-50 पॉइंट्स पे मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं इंट्राडे के लिए, राइट? करेक्ट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नीचे आया था, वापस 200 से ऊपर गया, यहाँ पे आया था, बट ये जो EMA बहुत पास में रहते हैं, वहाँ पे क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो 200 EMA आपका नॉर्मली और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट रहेगा, जहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वहाँ से वो रिवर्स करेगा ही करेगा, राइट? यहाँ से भी किया था, ये बड़ा कैंडल मार्केट ओपन होते ही आया था शायद, यस। उसके बाद जो नीचे जाना शुरू किया, यहाँ से 20 से रिवर्सल किया, 50 से रिवर्सल किया, 100 से रिवर्सल किया, और 200 से बड़ा रिवर्सल मारा है। मेक सेंस? यस, स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है? ये सब आपके सामने है, राइट? इट्स नथिंग लाइक कि, और आप ये कोई भी चार्ट में फॉलो कर सकते हो, राइट? आपका ये कम्युनिटी में भी दिखेगा, आपको ये करेंसीज में भी दिखेगा, आपको ये कोई अदर स्टॉक में भी दिखेगा, राइट? जैसे मैं अगर कोई इंटरनेशनल स्टॉक भी लेता हूँ, एप्पल INC, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया था, 200 से रिवर्स किया है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 से रिवर्स किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, उसका स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? सो 200 से आपके चांसेस रहेंगे कि वो रिवर्सल करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 186 से लेकर 185 तक नीचे आया, और फिर वापस यहाँ पे 185 से 187 तक। इंट्राडे के लिए ये मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट है, ₹2 का, राइट? सो कोई भी स्टॉक ले लो आप, अगर USD INR भी लेते हो तो आपको ये मोमेंट्स दिखेंगे पक्का, जबकि इसका इतना ये नहीं रहता है, बट आपको दिखेंगे, राइट? 200 से नीचे आया है, और इसमें ये इतना मोमेंट भी बहुत काफ़ी है एक्चुअली, और ट्रेड लेने के लिए USD INR में, बिकॉज ये बहुत सस्ता मिल जाता है आपको। ओके, बैंक निफ्टी चेक कर लो, 200 से रिवर्सल, 200 से रिवर्सल, 200 से रिवर्सल, यहाँ पे भी देखो 200 से रिवर्सल आ रहा है, 200 से रिवर्सल, 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 200 से यहाँ से भी रिवर्सल है, राइट? सो यहाँ पे भी देखो 200 से अच्छा रिवर्सल आया है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पे जब रिटेस्ट किया तो अच्छा खासा रिवर्सल नीचे आया है, राइट? यहाँ पे भी देखो 200 से रिवर्सल आया बैंक निफ्टी में, यहाँ से भी अच्छा खासा रिवर्सल आया है,
यहाँ पे आया था थोड़ा, यहाँ पे ट्रेड फेल हो जाता शायद, राइट। बट ईएमए बहुत पास में है, तो हम लोग वो स्ट्रेटेजी बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी ईएमए पास में थे। 200, 200, 200, राइट। ओके, क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यहाँ तक सिर्फ ये 4th करेक्शन पॉइंट पे, 4 करेक्शन पॉइंट पे हो गए सब? हेलो हेलो हेलो। No questions. ओके, परफेक्ट। ऑल राइट, सो अभी नेक्स्ट है आपका, अगर वो 200 ईएमए को, ओके, कुछ अलग बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे ही हमने एक नया स्टॉक अभी ऐड किया है, वैभव ग्लोबल, डेली चार्ट में। सो डेली चार्ट में ये बेसिकली 200 से नीचे आया था, राइट। उसके बाद ये 200 से गिर रहा था, सो यहाँ पे गिरा था 200 से, राइट। यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, और अभी यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया था, तब हमने इसको बाय किया है, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी ओनली, बेसिकली ये ब्रेकआउट है, ये रिटेस्ट है, सो हमने यहाँ पे इसको बाय किया है, राइट। अगर ये चैनल जो फॉर्म किया है इसने यहाँ पे, इसका अगर अच्छे से ब्रेकआउट हो जाता है, तो इट कैन गिव गुड मोमेंटम और गुड गेन इन अपकमिंग वीक्स एंड मंथ्स। ओके, सो 200 ईएमए जैसे यहाँ पे 200 से नीचे था, सो यहाँ से गिर रहा था, राइट। पीछे जाके देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया था तो 200 से वापस ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे भी गया था थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो, डेली में इतना ऊपर गया 72 तक, और फिर वापस 200 को टच करके वापस नीचे आ गया इतना सारा, राइट। यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे ब्रेक किया, बट रिटेस्ट फेल हुआ तो नीचे आ गया वापस। यहाँ पे भी गया था। ओके, सो यहाँ पे भी देखो, ये 200 को जो ब्रेक किया, जिसको कोई फॉलोअप नहीं है, बट यहाँ पे काफी देर तक 200 पे रुका, और 3780 से लेकर अभी तक 7300 गया है, राइट। सो ये जो रिटेस्ट करने जब आता है, राइट, तो अच्छा गेन मिल सकता है आपको। ओके, यहाँ पे भी आया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी देखो, 200 पे काफी देर देर तक रुका, फिर वापस ऊपर गया था, 3000 से 4200 तक गया है, राइट। सो आपका किसी भी टाइम फ्रेम में काम आएगा। यहाँ पे भी नीचे आया है, यहाँ पे ब्रेक किया, कुछ न्यूज आया होगा, यहाँ पे भी नीचे आया 200 से। सो नॉर्मली जो आपके करेक्शन पॉइंट्स है, वो आपके 200 पे खत्म होते हैं। सो दिस इज एट 200 नाउ मारुति, राइट। सो गुड टू एंटर एट इवन शॉर्ट टर्म। आपका एसएल बिकॉज काफी कम है, हार्डली आपका 150 पॉइंट का एसएल है, 150-200 पॉइंट का, राइट। यहाँ पे भी एसएल रख देते हो आप 9791 तक, और एंट्री यहाँ पे मारते हो 9972 तक, तो आपका हार्डली 200 पॉइंट का एसएल है, राइट। टारगेट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 9600 से लेकर एटलीस्ट 10600, 10700 वापस तो आ ही सकता है। ओके, यहाँ पे देखो 200 से गया है डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में देख ले, वीकली के जो बेसिकली मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, राइट, उनके लिए वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। अगर कोई स्टॉक वीकली में 200 पे आता है और वहां से रिवर्स करने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, सो काफी अच्छा चल सकता है। ओके, सो अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ, ये जो नीचे आया था, यहाँ पे रिटेस्ट
नीचे आया था वापस, राइट, ऑलमोस्ट 15-20% आया था, बट जब ये ब्रेक किया वापस रिटेस्ट पे आया, तो यहाँ पे आप एंट्री मार सकते हो, जैसे इस कैंडल पे मार सकते हो, राइट। ये आपका प्रीवियस लो आपका एसएल हो जाएगा, इमीडिएट प्रीवियस लो, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वापस एंट्री देने दिया था उसने, यहाँ पे भी एंट्री दिया था, और यहाँ से जो वापस गया है, एसएल तो कभी हिट ही नहीं हुआ, बट यहाँ से जो वापस गया है 1250 से लेकर ऑलमोस्ट 9000 तक, राइट, बिकॉज दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा रिवर्सल का चांसेस और उतना बड़ा गेन भी आपको मिल सकता है, राइट। क्लियर? ओके, अगर कोई लेट्स से यहाँ पे एंट्री मारता है, या फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो एंट्री मारेगा तो एसएल हिट हो जाएगा, राइट, बिकॉज आपका प्रीवियस लो ये, या फिर ये कहीं पे और रख सकते हो आप, बट यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई एंट्री का चांस नहीं था, नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे नीचे आया है, बट इधर ही खेला है वो। उसके बाद ये जो एंट्री है यहाँ पे हम लोग मार सकते हैं, एसएल छोटा सा था आपका यहाँ पे वापस, हार्डली 100 पॉइंट का एसएल था, मतलब 10% पकड़ लो, राइट। बट वीकली में आपके गेन्स तो मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। Hello. हेलो, Screen is not moving. Stuck हो गई है बजाज ऑटो पे. ओह इज इट, लेट मी रीस्टार्ट। No, Not for me. see, No, it was fine. It's fine. ठीक है, कोई नहीं, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है डॉली? No, it's black now. ओके, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिए, मेरा भी बीच में ऐसा हुआ था। Okay, I'll try. Okay now. ऑलराइट। सो अगर कोई यहाँ पे एंट्री मारता है और यहाँ पे एसएल रख देता है, राइट, सो आपको अभी ये पोजीशन एग्जिट कब करना है, करेक्ट। सो अगर कोई मतलब क्लोजली फॉलो कर रहा है, राइट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बट मिड टर्म इन्वेस्टर है, और उसको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाना है, और कहीं पे तो गेन बुक करना है, राइट। सो उस केस में आप क्या करोगे? लेट्स से अगर कोई मंगेश ड्रॉप हो गया क्या? हाँ शायद यस. ओके. हेलो, Yeah, Mangesh. I lost in between. All right. Okay. So I was discussing like अगर कोई यहाँ पे अपना पोजीशन लेता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं, राइट, वीकली है तो आप नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, राइट। सो यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रख देते हो, ये तो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस हो गया, बिकॉज यहाँ से तो पता चल जाएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड था और जो जो मतलब कट किया था वो कंटिन्यू होगा। नॉर्मली अच्छे स्टॉक में वो होता नहीं है, बट हाँ ये अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। अगर यहाँ पे कोई पोजीशन लेता है तो इस पोजीशन को एग्जिट कब करना है और कैसे एसएल ट्रेल करना है, राइट। सो आप क्या करो, यहाँ पे पोजीशन ले लो इसका हाई जाने के बाद। सो नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं इसका हाई गया है क्या, यस इसका हाई गया, तो आप यहाँ पे पोजीशन ले लोगे, राइट। यहाँ पे एसएल रख दोगे, अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका लॉन्ग टर्म के लिए ये रहा, राइट, बिकॉज ये वीकली है। अगर ये इसके भी नीचे चला जाता है तो आपका ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बिलीव मी। ओके, सो अपने को इसके आगे रिस्क नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पोजीशन ले लिया, अभी इस पोजीशन को एग्जिट कब करना है।
सो आपको क्या करना है, जैसे वीकली में आपने पोजीशन लिया है तो आपको इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। इसका लोअर टाइम फ्रेम क्या है अपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से? वीकली का लोअर टाइम फ्रेम क्या है? डेली। डेली। आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम लगा के रखो स्टॉक के लिए, और जब भी ये डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे तो अभी डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA को ब्रेक करेगा तब आपको एग्जिट करना है, राइट। सो आपने यहाँ पे पोजीशन लिया है अभी कहीं पे, वीकली टाइम फ्रेम देख के लिया है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस आपको जब तक ट्रेल करना है, मतलब आपका पोजीशन तब तक ट्रेल करना है जब तक आपका डेली में 200 EMA ब्रेक ना हो जाए। चलो देखते हैं कब ब्रेक हुआ, राइट। यहाँ पे ऊपर गया, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बिकॉज अभी 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 आपने पोजीशन लिया है, राइट। आप एग्जिट करोगे तो ये तो अभी यहीं पे खेल रहा है, राइट। अभी ये ऊपर गया, अब जब भी ये अभी अच्छा खासा ऊपर गया, राइट, ऑलमोस्ट आपका ये सेल से ऑलमोस्ट पकड़ लो 30% ऊपर गया, राइट। सो अभी जब भी आपका ये डेली में 200 में ब्रेक करेगा तब आप आपका पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। सो फर्स्ट देखो, जैसे यहाँ से ऊपर गया तो फर्स्ट करेक्शन आपका 20 EMA पे खत्म हुआ है, यहाँ पे भी देखो 20 EMA पे खत्म हुआ, यहाँ पे भी 20 EMA पे खत्म हुआ। ये जो करेक्शन जब खत्म होता है बेसिकली वो नए जो यहाँ पे मिस कर गए थे, राइट, ऐड करना, उनके लिए ये पोजीशन पॉइंट है। तो मतलब यहाँ पे वो बाय कर सकते हैं, और जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अभी तो 20 से गया, अभी 50 से गया, अभी 100 से जा रहा है, ओके। अभी ब्रेक हुआ लेकिन उसका लो नहीं गया है, तो आप पोजीशन को रख सकते हो, और यहाँ पे शायद आपका आपका पोजीशन वापस एग्जिट कर सकते हो, राइट। सो ऑलमोस्ट आपका 30-35% का गेन मिल गया, राइट। अभी आपको नया पोजीशन कब बनाना है, जब वापस ये डेली में 200 के ऊपर चला जाए, राइट। सो अगर मैं वापस इसको ट्रेल कर रहा हूँ तो ये वापस डेली में 200 से ऊपर गया है, तो आप यहाँ पे आप वापस आपका पोजीशन बना सकते हो, राइट। सो वापस आपको वही ट्रेल करना है, जब भी वो डेली में 200 EMA को ब्रेक कर दे तब आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेक हुआ है लेकिन कोई लो नहीं गया है, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आप आपका पोजीशन वापस एग्जिट कर सकते हो, सो उसी कॉस्ट में आ जाएगा शायद, राइट। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो क्लोजली मार्केट को फॉलो करते हैं, राइट, डेली डे ऑन डे बेसिस पे, वही लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज बाकी अगर आपके पास स्टॉक्स है तो आप वो फॉलो नहीं कर सकते। ब्रेक किया था लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वापस पोजीशन बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 20 EMA से वापस ऊपर जा रहा था, कुछ हुआ होगा यहाँ पे, बड़ा कैंडल रेड था, बट इसको इसको कोई फॉलोअप नहीं है। ऑलमोस्ट 1450 के आसपास पोजीशन बना था। सो आप अगर चाहिए तो शॉर्ट टर्म वाले बेसिकली जो टारगेट्स और एसएल है उसके हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खेल सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एग्जिट क्यों हो गए, पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ, बट या यू कैन ट्रेल योर एसएल based on the lower time frame, okay, all right। समझ में आया? अपने हायर टाइम फ्रेम पे अगर पोजीशन लेते हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे उसको मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेल कर सकते हो, all right। now how to move to next time frame।
मैं कहीं पे पीछे जा रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट पकड़ लो, राइट। जैसे यहाँ पे ये 200 EMA को ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस नीचे जा रहा है, राइट। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये जो करेक्शन है आपका, ये कहाँ पे खत्म होगा, राइट। तो अगर आप 1 मिनट में हो और 1 मिनट में टाइम फ्रेम आपका मतलब EMA ब्रेक हो जाता है, 200 EMA ब्रेक कर देता है प्राइस। सो आपका नेक्स्ट टाइम फ्रेम कहाँ पे, नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपको कौन सा फॉलो करना है? 5 मिनट्स। सो आप सीधा अभी 5 मिनट्स का चार्ट लगा दो। 1 मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? मैं यहाँ पे लगाता हूँ। कुछ तो घटक और रिप्लाई। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसको फॉलो पे आया है, राइट। यहाँ से गया था ऊपर, बट यहाँ पे ब्रेक हुआ, फॉलो पे आया है। सो आपको क्या करना है? टाइम फ्रेम आपका चेंज कर देना है 5 मिनट में, राइट। अभी 5 मिनट में देखते हैं, ये 5 मिनट में ब्रेक किया है, ब्रेक नहीं किया एक्चुअली, क्लोजिंग ऊपर ही हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक किया है, राइट, लो नहीं गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे ये कैंडल तो ऊपर ही क्लोज हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किया था बट उसका लो नहीं गया है, तो इसके बाद वापस ऊपर गया है, बस वापस ब्रेक किया है। तो हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है अभी। ओके ओके, सो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, तो इसका लो भी गया है अभी, राइट। सो अभी ये जो टाइम फ्रेम है आपको तुरंत चेंज करना है, किस चीज के लिए? 15 मिनट्स के लिए। ओके, सो आई चेंज इट टू 15 मिनट्स। सो देखो 15 मिनट पे ऊपर क्लोजिंग हुआ है। अभी देखते हैं 15 मिनट में क्या कर रहा है। 15 मिनट में ब्रेक हुआ है, लो नहीं गया है अभी तक, रिटेस्ट बट उसका सक्सेसफुल है, लो मतलब नीचे आने के लिए। सो यहाँ पे नीचे आ रहा है वापस, ओके। सो नीचे जा रहा है, रिटेस्ट पे नीचे जा रहा है। सो अगर ये 15 मिनट में भी ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट आपको फॉलो करना है। सो 30 मिनट में चांसेस है कि वहां से वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट, बट शायद गैप अप हुआ है डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखो 30 मिनट में आया है, बराबर कैंडल ऊपर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे वापस आप पोजीशन ले सकते हो, ये हाई जाने के बाद। ओके, ये हाई जाने के बाद अगर आपने पोजीशन लिया है, तो ये आपका एसएल रहेगा, राइट। सो देखते हैं अभी ये क्या करता है 30 मिनट में। ओके, सो 30 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 150, 200, 300 पॉइंट का गेन मिल गया, राइट। सो इस तरीके से आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। अगर 1 मिनट में ब्रेक हो गया है तो तुरंत टाइम फ्रेम शिफ्ट करो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में भी ब्रेक हो गया तो तुरंत टाइम फ्रेम शिफ्ट करो आपका 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ब्रेक हुआ तो हमने तुरंत टाइम शिफ्ट कर लिया 30 मिनट में, राइट। और यहाँ पे हमने ये हाई जाने के बाद पोजिशन लिया था, तो यहाँ पे हमने एसएल रखा था, तो नीचे जब आया रिटेस्ट किया और वापस अच्छा खासा ऊपर गया। सो ऑलमोस्ट 500 से 900 गया अभी तक, राइट। सो कुछ तो गड़बड़ है इसमें रिप्ले में। कमान डिसेबल हो जाता है सीधा सीधा, पता नहीं। ओके, एक बार और देखना है, एक बार और देखना है टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट करना है। यस, नो? No, got it. यू गॉट इट, परफेक्ट। ओके, यहाँ पे 1 मिनट में नीचे है, 5 मिनट में देख लेते हैं। मैं कहीं रैंडमली गया हूँ अभी, राइट। 5 मिनट में देखो 200 से नीचे आया, 200 से नीचे आया। सो सॉरी 3 मिनट। सो 5 मिनट में भी नीचे आया है। 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट भी यहाँ पे कैंडल प्रिंट हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। हाई गया है तो आपका ये लो आपका एसएल रहेगा, तो यहाँ पे एसएल रख दो, थोड़ा नीचे रख दो भले, बट ये हाई गया है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये एसएल हिट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्या करना चाहता है वो। ओके, सो
200 EMA से नीचे खेल रहा है, EMA बहुत पास में है। यहाँ पे शायद आपके 2-3 बार ऐसे हिट हो जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी आप शायद पोजीशन बना सकते थे बिकॉज ये नीचे क्लोजिंग हुआ था। यहाँ पे भी बना सकते थे बट बहुत कम गेन हुआ, तो शायद एग्जिट करने के लिए भी चांस नहीं मिले। यहाँ पे भी नीचे है बट ये में बहुत पास में, तो हम लोग ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, बट शायद आपके एसएल 2-3 बार हिट हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी देखते हैं ये 15 मिनट में ब्रेक करता है कि वापस। ओके, सो 15 मिनट में ब्रेक हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना है अभी 30 मिनट्स। सो 30 मिनट में देखो 200 से ऊपर गया है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। सो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो वापस 30 मिनट में, राइट। ये सेल आपका यहाँ पे कहीं पे रख दो बिकॉज ये भी ब्रेकआउट था एक छोटा सा, राइट, और इमीडिएट चाहिए तो इसके नीचे रख दो, राइट। सो यहाँ पे ऊपर गया है 30 मिनट्स में भी, 30 मिनट में हम लोग फॉलो करें। देखो जो ये सेल थोड़ा नीचे जो रखा उसका फायदा हुआ है शायद, देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। सो गेन तो दिया है, ये सेल तो हिट नहीं हुआ है, राइट। ये गेन अच्छा खासा मिला है 30 मिनट्स में, इतना गेन काफी है एक्चुअली, राइट। अभी देखते हैं 30 मिनट में ब्रेक किया है। ओके, सो अगर 30 मिनट में ब्रेक किया है तो हम लोग को कौन सा नेक्स्ट टाइम फ्रेम फॉलो करना है, 1 आवर का। सो मैं 1 आवर में जा रहा हूँ अभी सीधा। सो 1 आवर में वापस यहाँ पे एक अच्छा कैंडल दिया है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, सो पोजिशन नहीं बनेगा, बट हाँ 30 मिनट में सॉरी 1 आवर में 200 EMA को टच करके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर में ब्रेक किया है अभी। देखो यहाँ पे पोजीशन नहीं मिलता बिकॉज आपको इसका हाई जाने के बाद पोजीशन लेना था, राइट, जो कि मिला नहीं अपने को। अभी देखते हैं क्या करता है, राइट। सो 1 आवर में है ऊपर, यहाँ पे एसएल वापस हिट हो जाता आपका, राइट, बिकॉज आपका रिस्क के ऊपर आप एसएल रख देते। वैसे भी नेक्स्ट डे है तो आप पोजीशन तो नहीं बनाओगे इसे रैंडमली विदाउट स्ट्रेटजी, बट यहाँ पे अगर कोई रखता भी है ओवरनाइट तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। मैं देखते हैं 30 मिनट में ये कब ब्रेक करता है। 30 मिनट में वापस यहाँ पे सॉरी 1 आवर में यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फॉलो अप आया है, तो आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे 2 आवर के लिए। आपको नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा 2 आवर में 200 EMA पे, तो यहाँ पे मिल गया आपको पोजीशन, राइट। सो हाई गया है तो आप पोजीशन बना सकते हो। ये सेल वापस आपका यहाँ पे कहीं पे रख दो बिकॉज यहाँ पे एक गैप दिख रहा है मुझे, राइट। सो 200 EMA में हम लोग है अभी 2 आवर टाइम फ्रेम में, रिटेस्ट किया है, राइट। ये सेल तो हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखो अगर कोई यहाँ पे भी पोजीशन बनाता है तो अच्छा खासा गेन मिल सकता है। लेट्स सी व्हाट इट डज, या सो इट हैज गिवन गुड गेन। और ये सेल इसके नीचे नहीं रखने का फायदा हुआ बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एक गैप दिख रहा था, तो उसके नीचे हमने एक एसएल रख दिया, तो अच्छा खासा यहाँ पे गेन हुआ है। 1900 300 से 20,000 गया है, राइट। सो जो आपका करेक्शन का सब खत्म हुआ 1 आवर में ब्रेक करने के बाद, वो एग्जैक्टली आपका 2 आवर में 200 पे खत्म हुआ है। क्लियर? अगर अभी 200 में ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या फॉलो करना है वो देखते हैं, राइट। ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ब्रेक हुआ नीचे गया, आपको तुरंत टाइम फ्रेम चेंज करना है 4 आवर के लिए। सो अभी देखते हैं 4 आवर पे वो कब आता है। सो आपको पोजीशन तभी लेना है जब 4 आवर पे वो 200 EMA पे आए। 200 EMA पे आया, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, ब्रेक कर दिया, फॉलो अप आया। सो अभी 1 डे में जाना पड़ेगा तुरंत। 1 डे में 200 EMA पे आया है, देखते हैं रिवर्सल कैंडल प्रिंट होता है कि यस रिवर्सल कैंडल प्रिंट हुआ है। अब ये डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो और कोई प्रीवियस सपोर्ट देख के आप ये लेट्स से ये बना सकते हो आप, इसको आप एसएल बना सकते हो। ओके, ये जो है रिटेस्ट जो था ब्रेकआउट का, कोई और टाइम मतलब ये कोई और प्रीवियस वाला होगा ये, जैसे यहाँ पे था एक, राइट। सो अगर इसको एसएल बना देते हैं हम लोग, राइट, और यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में आपको 300 पॉइंट का ये है एसएल है,
ऑब्वियसली डेली है तो एसएल भी बड़ा रहेगा, बट गेन भी अच्छा मिल सकता है। लेट्स से वापस 20,000 तक जा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 900 का गेन मिल सकता है ऊपर, तो यहाँ पे 700 का गेन मिल सकता है। लेट्स सी व्हाट इट डज, एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है। सो ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट हो गया। क्लियर? क्लियर नाउ एवरीवन? Yes. सो स्टार्ट Yes, विथ, Mangesh. अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेते हो, स्टार्ट विथ 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? गो 1 2 3 days बैक, check what it does, right? And then find the time frame and be ready on that time frame. अगर 1 आवर में ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, 200 का 200 ए में 2 आवर में लगा के रख दो, वहां से रिवर्सल कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ओके, ऑल राइट, ओके, सो वी आर हियर नाउ। ओके, सो नॉर्मली आपका 200 EMA पे करेक्शन खत्म होगा। सो अगर आपको पता चल गया कि करेक्शन कहाँ पे खत्म होने वाला है, तो आप पोजीशन भी बना सकते हो। ओके, अभी कुछ स्टॉक्स देखते हैं, जैसे हम लोग वन डे तक तो आ गए हैं। अभी हम लोग कुछ स्टॉक देखते हैं जो वीकली में मंथली में भी 200 में ब्रेक कर चुके हैं, राइट? जैसे यस बैंक तो अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट लेट्स सी। ओके, यस बैंक ने यस बैंक देखो, राइट? यहाँ पे 200 पे था, यहाँ पे 200 से रिवर्सल किया है। ये कैंडल देखो, ये डेली कैंडल है, इतना नीचे आया था वो, ये 2007 का कैंडल है। ये देखो कैंडल इतना नीचे आया था, बट ऑलमोस्ट 200 पे से वो वापस रिवर्सल भी मार दिया। यहाँ पे भी अच्छा खासा नीचे आया था, 200 से रिवर्सल कर दिया, 200 से रिवर्सल कर दिया, राइट? अब यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेक में किसको बोलता हूँ? जब कैंडल उसको क्लोज कर दे, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, राइट? कैंडल क्लोज करके उसका लो भी गया है, राइट? सो ये आपका 200 EMA को डेली में ब्रेक हुआ। सो लेट्स सी व्हाट इट डज आफ्टर ब्रेकिंग दिस 200 EMA इन डेली। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट आते हैं, लो नहीं गया है, कोई पोजीशन नहीं, अभी लो गया है, राइट? तो अपने को टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा अभी वीकली में। वीकली में तो अभी 200 EMA इसका बना ही नहीं है, बट हाँ, सो देखते हैं वीकली में टाइम फ्रेम आता है क्या, बट दिस इज नॉट गुड एग्जाम्पल आई गेस। भाई पैसा दिया है, चल ठीक से। हे भगवान, ये 200 EMA तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, बट डेली में आपका ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। वीकली में भी देखो 20 EMA से नीचे आ रहा है। ये वीकली में 200 EMA भी प्रिंट हुआ है। सो यहाँ पे अच्छा खासा खेला है वो 200 EMA पे, और अभी ऊपर जा रहा है। ये हम लोग यहाँ से डेली में टाइम फ्रेम में जा सकते हैं अभी, बिकॉज वीकली में वो
200 को ब्रेक करके मतलब 200 से ऊपर आया है, तो अभी आप पोजीशन कब कट करोगे? जब डेली में वो 200 को ब्रेक करेगा. So let's see if it is breaking 200 EMA in daily now. ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे पोजीशन कट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो. अभी डेली में देखो, डेली में 200 से वापस ऊपर गया, रिटेस्ट पे पोजीशन बना सकते हो आप. नहीं बन पा रहा है. ओके, डाउन साइड नाउ. ओके, डाउन साइड, स्टिल डाउन साइड. यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा आपका. वापस ऊपर गया है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा आपका, बट यहाँ पे वापस पोजीशन मिलेगा आपको. ये भी कैंडल देखो. ये डेली से वापस ऊपर जा रहा है. डाउनफॉल चालू हो गया. 200 से ऑलमोस्ट नीचे गया है, 200 से वापस नीचे गया है. इससे लेट हो जाएगा यहाँ पे, किसी ने अगर पोजीशन बनाने की कोशिश की तो. बट ये वीकली में देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली में ऑलरेडी 200 EMA ब्रेक है. सो आई विल गो बैक अगेन. जैसे यहाँ पे डेली में 200 EMA ब्रेक है, तो यहाँ पे डेली में 200 EMA ब्रेक है वापस, राइट. सो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा वीकली में. वीकली में भी ब्रेक हो गया, टाइम फ्रेम चेंज करेगा मंथली, बट मंथली में शायद 200 नहीं रहेगा अभी तक. ठीक है, सो देख लेते हैं आगे जाके. वापस वीकली चेंज किया मैंने, तो मंथली अभी तक 200 EMA बना नहीं है. सो वीकली में वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. ओके, हेलो हेलो, क्या हुआ? Yes, Manus. हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ हाँ रही आवाज आ है। रही है. Okay. Okay, I will show you just quickly how the dead stock getting created. Okay. So weekly में थे हम लोग. So ये काफी अच्छा खासा चल रहा था, ऑलमोस्ट 400 तक गया था, राइट. यहाँ पे वीकली में ब्रेक हुआ, वापस उसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट वापस यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट. सो अगर मैं इसको, मुझे सिर्फ डेड स्टॉक कैसे बनता है वो दिखाना है बेसिकली. यहाँ पे वापस ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट आया था नीचे, राइट, और वापस ब्रेक करके ऊपर भी गया था, तो वापस यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा आपका कहीं पे, राइट. सो अगर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या कर रहा है, तो ब्रेक हुआ है, तो आपको श्योर शॉट टाइम फ्रेम तो चेंज करना पड़ेगा मंथली.
400 से 40 पे आ गए। अभी यहाँ पे कहीं पे इसका 200 EM बना है एक्चुअली कहीं पे 2022 में। सो नो, रिलायंस का कोई स्टॉक देखते हैं। डेली तो नहीं, कोई पुराना स्टॉक बताओ जो डाउनफॉल में चल रहा है। हेलो, BBL, वेदांता। वेदांता। वेदांता थोड़ी डाउनफॉल में चल रहा है, गया था ये डाउनफॉल में। ओके, हम्म, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरा। ओके, सो वेदांता यहाँ पे गया था बट काफ़ी रिकवरी हुआ है यहाँ पे। सो रिटेस्ट तो मतलब इसका सक्सेसफुल था, बिकॉज रिटेस्ट से नीचे गया बट वापस ऊपर गया। यहाँ पे भी रिटेस्ट सक्सेसफुल था, वापस ऊपर गया। सो ऑलमोस्ट ये 150 से लेकर 63 तक नीचे आया था। ओके, बट जो भी स्टॉक्स अगर कोई आपको दिखता है वीकली मंथली में, राइट, वीकली भी बहुत खतरनाक है अगर वो 200 EMA को ब्रेक करता है तो, राइट, बिकॉज नॉर्मल ऐसा होना नहीं चाहिए अच्छी कंपनी के साथ, राइट, कि 200 मूविंग एवरेज पे भी लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हम भी बाय नहीं करेंगे उसको। ओके, HDFC AMC भी गया था। इसको शायद कुछ स्टॉक्स अपने को इसमें देखने पड़ेंगे BSE में। BSE पे देखने पड़ेंगे कुछ स्टॉक्स। नहीं, 200 EMA तो इसका प्रिंट वीकली में गया था ये बराबर। वीकली में गया था, रिटेस्ट से वापस नीचे आया था, बट यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, देखो, राइट। सो ये ऊपर कट किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे कहीं पे आप पोजीशन बना सकते थे बेसिकली इसका। और वही शायद हमने अभी वैभव ग्लोबल में किया है, राइट। सो यहाँ पे ब्रेक है, अच्छा खासा कैंडल प्रिंट हुआ है और वापस 200 पे आया है, राइट। सो ये काफ़ी वीकली में भी नीचे था, राइट। सो हमने यहाँ पे अभी कहीं पे पोजीशन बनाया है इसका, राइट। सो जैसे मोना ये चैनल का अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा गेन ये दे सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, राइट। यहाँ पे जैसे वीकली से एक अच्छा खासा ऊपर गया है। ओके, क्लियर, ये में थ्री क्लियर। Yes. How to change the time frame is very important. Finding the correct time frame is also important. Because अगर correct time frame नहीं find कर पाए तो बहुत सारे ट्रेड आपके फेल हो जाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि कोई कोई इंट्राडे लोग 1 मिनट लगा के रखते हैं, फिर बोलते 200 पे आया था बट वापस वहाँ पे सेल हिट हुआ। वो क्यों हुआ? बिकॉज आपको थोड़ा पीछे जाके देखना है कि उसने पहले क्या किया है, राइट। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन नहीं बनेगा बिकॉज ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो आपको इसको 5 मिनट में ही जाके देखना पड़ेगा। 5 मिनट से ही ये रिवर्सल अच्छा करेगा आपका। ओके, सो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बन रहा आपका अभी, जब तक कि 5 मिनट पे 200 EMA पे नहीं आएगा। निफ्टी में ज़्यादा अच्छा चलेगा छोटे टाइम फ्रेम, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा रहता है। सो अगर 1 मिनट में वो ब्रेक किया तो आपको 5 मिनट में जाके देखना ही पड़ेगा इसको। जैसे ये 1 मिनट में ब्रेक है बट कोई कैंडल वापस ऊपर आ गया तो एसएल हिट हो सकता है अगर आप इसका लो पे एसएल पोजीशन लेते हो तो, राइट। बट अगर कोई 1 मिनट में ब्रेक हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ही जाके देखना पड़ेगा उसको। जैसे यहाँ पे 1 मिनट में ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट भी सक्सेस हुआ है 1 मिनट में नीचे, तो यहाँ पे आप अभी अगर ऊपर जाता है और 1 मिनट वापस नीचे आता है तो शायद पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना ही पड़ेगा इसके बाद। ओके, बिकॉज अच्छा ब्रेक है, रिटेस्ट है, सो 5 मिनट में जाके ही देखना पड़ेगा इसको। ओके, 5 मिनट से पहले इसको पोजीशन मत लो। अगर 5 मिनट में रिवर्सल प्रिंट होता है तो ही पोजीशन लेना। 5 मिनट में भी ब्रेक हुआ है
तो आपको इसको 15 मिनट में ही जाके देखना पड़ेगा, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं यहाँ पे। ओके, 15 मिनट में भी ब्रेक हुआ है, लो गया है, तो इसको 30 मिनट में ही जाके देखना पड़ेगा। कोई पोजीशन नहीं बनेगा जब तक आपका वो रिवर्सल पॉइंट अच्छे से पकड़ा नहीं जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हुआ है, हाई जाने के बाद पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे लो आपका ये हो गया। ओके, सो पोजीशन लेते भी हो तो ये 30 मिनट में टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका करेक्शन खत्म हुआ था, देख रहे हो। सो डोंट run into the time frame where it already breaks the 200 EMA. Okay, clear? Yes. All right, recording में stop कर रहा हूँ, so अगर